टॉकिंग अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज का क्लास का टॉपिक है, आज के डिस्कशन का हमारा बच्चों टॉपिक है मेक इन इंडिया कैंपेन। एंड मेक इन इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा भारत के डेवलपमेंट में, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, एंड देन अ लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट मेक इन इंडिया। Go as deep as you can, go as vivid as you can, include everything that whatever kind of knowledge that you guys have acquired, and I will be starting this and then you guys can follow up after that. तुम लोग pick up कर लोगे वहां से और एक let us make it a logical group discussion among us and I want every one of you to ensure participation. ठीक है? So friends, if I have to start the group discussion on Make in India, so Make in India is an initiative that was being launched by Government of India on 25th of September 2014. The main aim of Make in India, as the name suggests, is making India a global manufacturing hub. This was being launched by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, and this not only helped us in becoming a global manufacturing hub, it also attracted a lot of foreign direct investment, increasing domestic production and all, है ना, creating jobs. बोलो तुम लोग, चालू हो जाओ। Yes, I would like to add one point here, add some points here that also it enhances our overall GDP that was 25%. Along with that, the total production, manufacturing production, which has as the scheme was launched, Make in India initiative was launched. From that scheme, we have increased the total production that is from 10 to 14% annually. And also, there are many certain real life examples we should go through. First example is that ISRO's Mars orbital mission. म्यूट। एनीवन एल्स? ये चीजें फिक्स रखा करो। एनीवन एल्स, यू कैन प्रोसीड। एनीवन एल्स वांट टू टॉक, प्लीज गो अहेड। I would like to add. रुको मत, You tell. रुको मत, बोलो। जो जिसकी आवाज में दम होगा वो उसको सब सुनेंगे अपने आप। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। चार बोलेंगे I कोई। would like to. I would like to add Am I audible, something sir? else related to defense manufacturing. And Apache AH-64 is the best example of our Make in India, that's called manufacturing in India. And this way, we are not depending on other countries. Ukraine, Russia is the current example of if भाई तो we are समझा, depend on other countries. समझा। अपाचे इंडिया में नहीं बनता। नहीं सर, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपाची मतलब AH-64 मतलब उसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया में उसके इक्विपमेंट्स मतलब बहुत जल्द मतलब बनने की तैयार होने तू को सही बात मतलब बोल, रहेगा। देख पूरी बात बोल। अपाचे बनता है यूएस में, उसका फ्यूजलाज इंडिया में बनता है यस टीएस सर। का। गलत इन्फॉर्मेशन मत दे, नहीं तो बैक फायर करेगा वो। जीटे बोलेगा क्या बोल रहा है भाई। फैक्ट एंड फिगर्स भी बोल रहे हो ना। इफ यू आर हैविंग सॉलिड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, प्लीज से द ट्रुथ, एग्जैक्ट नॉलेज। हवा में मत मारो रविकांत, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। तू वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अपाचे का Sir, फ्यूजलाज बन। actually, I would like to one point. So the Make in India logo is lion silhouette with lots of forks, and the main sector of Make in India, sir, 25 sector Make in India focuses on 25 sectors which have manufacture sector and service sector. Last 2 decades, service sectors leads to 25% of 25% of Indian economy, but only 12% of only 12% of sir, actually I forgot point. नेहा तू लिख दो चीज, तुझे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं फीडबैक दूंगा ना, अगर तुमने काम कर दिया तो तुम आगे चीते बन जाओगे। लिखो, तुम्हारी फ्लुएंसी में दिक्कत है। लिखो, वर्क अपॉन योर फ्लुएंसी। Yes, sir. इसको भी लग रहा है कि उसकी में भी दिक्कत है, तो वर्क अपॉन योर फ्लुएंसी एज वेल, बाकी की जनता। एंड देन यू हैव नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू कन्वे, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क अपॉन योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। लिख ले, वर्क अपॉन पावर ऑफ एक्सप्रेशन।
डेटा तेरे पास है। इसने बहुत अच्छी बात बोली, इसने लोगो बताया, किसी ने नहीं सोचा कि शेर वाला निशान होता है। इसने ये चीज अच्छी बोली, बट शी वॉज नॉट एबल टू कन्वे। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मेक इन इंडिया। अरे चेहरे पे थोड़ा हंसी वसी रख के मुस्कुराओ यार, क्या टेंशन है जीवन में। आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मेक इन इंडिया, अबाउट द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। ये ऐसे स्टार्ट करेगी ना, सारी जनता सुनेगी, अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। दूसरी चीज इसने अच्छी जो बोली, तेरे पास डेटा है पर तू कम्युनिकेट कर रही है मैन, तेरे पास डेटा है पर तू बोल नहीं पा रही, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में कमी है, तेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो वो क्या है ना, ऑफिसर फ्लुएंट बोलता है। फील करो यार, तुम ऑफिसर हो ना, फील करो उस चीज को, निकलेगा अंग्रेजी बाहर से। ठीक है, इसने जो बढ़िया बात बोली कि सर सर्विसेज सेक्टर 20-25% से ग्रो हुआ, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा था। अब तुम लोगों को याद होगा, जो मेरे बैच के बच्चे, जब मैंने इको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, है ना। जी सर्विस और सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं, और जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी सर्विस सेक्टर का ज्यादा है ना। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा बीच में रहा पर है। सर्विस सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट को उतना इनकरेज नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी फोकसेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। यस यस। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को हाँ, इनकरेज करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो खुलेंगी ही खुलेंगी। तो ये जो चीजें मैंने इनपुट दी ना, इस पे आपको काम करना है। तो इसने बोला अच्छा, वेल वेल, गुड सो, बट फ्लुएंसी में प्रॉब्लम थी इसके पास। ऐसी यूनिक चीजें थी जो ये चमक जाती है अगर जीडी में, एसएसबी में पार्टिसिपेट करेगी। पर बेटा बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई वुड स्टार्ट अगेन, देन यू गाइस पिक अप। this ओके, Make in India scheme so the main aim प्लीज कैरी ऑन। यस यस, कैरी ऑन। yes Sir, so the main aim I feel of the Make in India is which were outside the India to build their things, build their product inside India, such as Tesla. Modi government forced Tesla to uh, to include their cars, to build their cars in India so that they can catch their product, they can sell their product in India. By this happening, the foreign direct investment is also attracted by our government. And let's best example, that's making India aim to attract the simplifying and regulation of improving by business and technology. But one way there's a heavy and reliance foreign investment are globally fluctuation. I would like to add a point here, what Ravikant just said. As we already know, कि the goal of Make in India was to increase the manufacturing sector growth rate to 12 to 14% per annum, है ना. And apart from that, it is also being proposed that 100 million additional manufacturing jobs will be coming into the economy by 2025. So it is also supporting employment, it is supporting growth rate, it is also helping us in achieving our GDP growth targets. So GDP contribution will be increased to 25% from the manufacturing sector. As we know, manufacturing sector was the sector that was always in between agriculture and then services. But now it is being raised. I would like to tell you few live examples here. Classic examples of Make in India are ISRO's Mars Orbiter mission. We already know Mangalyaan. So being produced in India, developed and indigenously tested, launched on November 2013. Totally Make in India. And then also we are a pioneer in low cost, high manufacturing technologies. So that is how my take is on this. Carry on, sir, I Kardiya. would like to yes know main about goal the thinking that As Ravikant said, the small is an FDI and skill FII set gap is in there, sir. India. And I know there are a lot of things have made using Make in India, such as defense sector and technology sector, railway sector, space sector, and lot more, sir. And we are also seeing the big logo, that is lion logo, and everybody knows about that lion logo. But problem is that the people should see the visibility, sir. I know we have a lot of stats to say that we have this and this. Even our GDP is actually increasing by 8.6%, but still we are actually having the unemployment problem and skill gap problem. So we need to, sir, combine the unemployment and skill gap problem together, and to work on the skill gap problem, so that Make in India
impact could go longer and longer. Sir, I think that Make in India results which we are seeing, sir, it's just a starting portion, sir. We are still having large amount of difference between import and export, sir. So unless and until our export is not so grown enough as compared to import, so we are not actually having that Make in India impact, sir. Actually, we need a lot of time for Make in India to cross that export sector rather than import sector, because export sector always contributes a positivity of the GDP, sir, rather than import. Yes. Also, from that point, I would like to add one point as well. That as the manufacturing enhances throughout the country, the what you have noticed that the technology itself is enhancing throughout each and every sector. So, but for that, the manpower of the country, means number of manpowers, specifically the youth has to get a mastery. Sir, I think that manufacturing industry is a good industry, sir. But a problem is that there are lot of individuals are there who are skilled actually, sir. But they are actually unable to find their jobs, sir. So I guess through Make in India initiative, we can have a job job posting circuits where we can recruit those skilled laborers in our factories, because more number of factories will always lead to manufacturing, sir. So manufacturing always is going to be sir important ingredient for Make in India. But we also have to see that we should not leave the individuals behind, sir, because work is everything, sir. If any individual having his work is always going to contribute towards Make in India's thing, sir, rather than also paying taxes will also going to make the make the Make in India initiative good, sir. Right now, only if, I guess 10% of population is only paying the taxes. If this number is increased to say 20%, then Make in India initiative will have a bigger boost, sir. Because there are many sectors where we are importing a lot of things, sir. We have to reduce the gap, or we have to bridge the gap of export and import. Means export should be greater than import. That's my final take, sir. Whatever Udesh Okay, has thank you for that. So the main thing, like, it is to attract the foreign companies also. Well, I would like to add this point. And I also think that, investing in India also set up many factories and contributes to our country for the good. That is a very big initiative that focuses on not only in manufacturing but also promoting entrepreneurship. Well, after creating a favorable investment for the environment and enhancing infrastructure, the Make in India also aims for the manufacturing sector, which contributes to GDP from 15%, and I guess it is from 25% by 2020. So coming to all this, like, everybody has put in all the main points, but I would like to come to um, two major aspects of the Make in India, which is the advantages. And I feel that the main thing is regarding the employment generations. The main goal of Make in India is to generate and offer jobs to everyone, particularly for the youngsters of our generation. The second point I would like to say is, like, it is improving in all the areas. Third point, it will also impact for a good GDP. Coming to the fourth point, I guess it will also, there'll be a bump in the rupee value, growth of the native products, and also, technological development. So every sectors have their pros and cons. So does Make in India. So I feel there are some disadvantages also. That is also impacting our agriculture. Make in India is only promoting the individual growth, while it is not excluding the agriculture from it. After that, I think it is also exploiting the resources also. Coming to the resources, I would like to say resources are the finest from the nature, yet human wants are endless. The well-being of the population could also be a risk in the nearly future because of this. The Make in India also initiates focus in growth resources. Also, it is impacting the growth sectors and manufacturing sectors too. Coming to the next point, I feel, it is also impacting the small entrepreneurship also.
if I elaborate in a very brief manner, I think Make in India also is welcoming foreign nations to the country, where all the nations are established, where they are manufacturing facilities, they draw resident of them. They cause a loss for this small business in India and ownership already working, hard to their positions. And I think this is also impacting the fertile lands also. Fertile land, in a sense, like this camping is very strongly emphasizes the construction of the individual complex in India. But these, I think that these production facilities can, located anywhere else where, these lands are not being affected. And also the Piyush, I agriculture agree. lands can be preserved. Piyush, I agree with your Yes. points, whatever you have said about agriculture, environmental aspect, and and a small scale industry growth. But there is a con, I know, but there's cons can be made into pros, such as we can have a technology of Make in India for agriculture thing, because India is a whole country is a source of agriculture. Every place in India is having different types of soils and having different types of crops we can grow. So we can have a technology to have a irrigation, have a farming. So like we can make the technology to easiness of the farmers. Like they don't have to I would go like to throughout the I would field. like to add few pointers to what just Uddesh said. And as Uddesh is saying that manufacturing in India and then Make in India will also support agriculture. How it is happening, my friend. It is actually happening right now. There is a company that I know. I have been associated with Maruth Drones. These guys have made drones that are basically used for farming. You can say pesticide. You have to sprinkle Mm. pesticides on the plants. So these guys are using, and they are actually giving demonstrations in various parts of the country about their drones. So yes, this is a Make in India initiative, Made in India company, Made in India drones supporting the farmers. So everything is interlinked. It is not about if manufacturing sector will be on rise, so agriculture will be left behind. There are also few technologies that are undergoing production or that has uh, been produced now that are going to support farmers as well. So when these technologies will help support farmers, then farmers obviously the agriculture sector will also grow up. So because manufacturing and farming sector are closely associated, service sector a little bit far ahead, because mainly people who are employed in services sector are at least graduates or 12th pass. But manufacturing mein you need main of the labor part is there. Manufacturing means labor. I'm a mechanical engineer. I can tell you from my own experience. When I was a quality control guy, so we were having employees in the company who were just 8th pass, 9th pass. करो carry on करो यहाँ से. You Was Yes, I would giving like. example for manufacturing in the agriculture field. I'm also saying about the environmental aspect, so that we there is a air purifier exist in Delhi, where Delhi is having a lot of pollution problem. So we can make those air purifiers also. We can also have a safe camera for animals, and we can have a wire maybe in the upcoming future, where the birds cannot get harmed. If birds are getting harmed, then we know what's gonna happen. So we also have to take care of the environment. That's one of the cons that Piyush had told. And also Yes, agriculture, yes. we need to enhance the growth in agriculture, because agriculture is the thing, is a source where India is always having economically beneficial. So agriculture is like it was there earlier, and it is going to be there now, and it's going to be present in future also. So we need to be taking care of the agriculture field, as I think. I would like to Yes. also add on. Yes, yes, I Uh, agree with you. I agree with you. But over I time, also wanted to say like that these production facilities can days also, of be located somewhere else, which is, which won't spoil the productive lands. Therefore, it can also destroy the value of arable lands, as I mentioned. And coming to the losses of other sectors, I would also add on a point here. I think the complete focus on the manufacturing sector won't lead to the economic progress for the nation, I guess.
because the economy cannot develop by the developing by only one sector. And also, the pollution is also rising. The pollution index for India is currently 76.50, and after Make in India camping, the numbers are been rising rapidly. Over to you. I agree, Piyush, with your point, and manufacturing only will not going to help. But I am saying that export is the thing. Export will, if export is much greater than import, then it will have a great impact on Make in India initiative, because export is actually necessary, and agriculture is the biggest thing that we are actually exporting. Agriculture, and right now fuels also we are exporting. So these two are the major thing right now we are exporting, not other things. Right now we are much exporting, but agriculture things, all the things like products like everything, rice, sugar, or wheat, and all, Wait. everything in agriculture sector. And fuels, right now we are also exporting due to Russia Ukraine. We are also top exporter of the fuel right now. And and I think we need to be taking that. Only con I feel is the middleman. Right now middleman is not mentioned everywhere, but middleman has to be taken care of, because we are, suppose technology is made, but how to make a certain good use of technology, how technology is going to reach to the common people with its value, not its value taken care by the middleman. So I think we have to take care of the middleman. Next, Pratham, you speak. प्रथम तू बोल नहीं रहा कुछ? प्रथम क्यों नहीं बोल रहा भाई? यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. बोलो. Yes, sir. Right now I have a network issue, so that's why. मेरे को तो सही लग रहा है नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत मैं नहीं. audible. Yeah. बोलो, बहाने मत मारो. स्पीक. Yes, sir. समझ गया भाई. म्यूट कर ले. Add some points on this. That or नेटवर्क इशू है, फिक्स कर ले उसको, कोई दिक्कत नहीं है. एनीवन एल्स वांट टू स्पीक? यहाँ पे दो बच्चे बिल्कुल नहीं बोले. एक चीज बताओ ना. हाँ संदीप. I would like. अगर जैसे सर कोई गलत इंफॉर्मेशन बोल देता है बीच में, तो क्या हम्म. करना है? उसको टोकना है या फिर करेक्ट करना है या नहीं, चलने देना है? वहां पे महात्मा नहीं बनना. ठीक है, उसको चलने दो. वो जीटीओ सब नोट. अच्छा जीटीओ तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है. सामने वाला बंदा तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वो देख लेगा, वो अच्छा उसको अच्छा. पता लग जाएगा ये गलत बोल रहा है. वो बंदे का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और फिर कंटेंट देखते हैं. पहला तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. यहाँ पे एक भाई साहब हमारे साथ हैं, वैष्णव, ये तो बोल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल. वैष्णव बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोला. बाकी बच्चों ने प्रयास किया. ठीक है, नेहा बोली. नेहा फिर बाद में शांत हो गई. कुलदीप थोड़ा टोटली. कॉन्फिडेंस इशू है, हाँ आएगा इसलिए बेटा, बोल धीरे नहीं रही. मेरे पास धीरे. कंटेंट तो है. हाँ, धीरे धीरे आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा. इट विल बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है बच्चों, देयर इज नथिंग सच एज कि यार वन डे गेम. इट्स नॉट अ वन डे गेम ना. इट टेक्स सम टाइम Yes. फॉर एवरीवन टू गेट हैंग ऑफ इट. गेटिंग माय पॉइंट? सो वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एरिया. धीरे धीरे आएगा. अगर आप एक महीने कंसिस्टेंसी के साथ आ जाओ, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी कमियां पता लग गई, तो फिर तो तुम निपटा दोगे भाई. दैट इज द मेन थिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है. कौन यहाँ पे उद्देश्य? आई विल टेल यू गुड. सो यार गुड, तू बोल रहा है पर तू बहुत गलतियां भी करता है. ठीक है. और पीयूष बोल रहा है, पीयूष बहुत ज्यादा रिपीटेड भी चीजें बोल रहा है. पीयूष रिपीटेड में मत बोल. डू नॉट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. हर बार कुछ नया कंटेंट बोलना है, पुरानी कहानी बार बार रिपीट नहीं करनी है. वो सामने वाले को सब समझ में आता है. मैं एक कान मेरा बाहर की तरफ था, किचन की साइड, और फिर भी मेरे को पता लग रहा था कि यू आर सेइंग द सेम थिंग ऑन रिपीटेड नोट. रविकांत के साथ आई एम गिविंग यू फीडबैक्स, तो प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट कि रविकांत के पास डेटा है जो मैंने दिया है, पर वो बोल नहीं पा रहा उसको उस तरीके से, गलत बोल दे रहा है. ठीक है. दाजी बोल सकता है पर दिक्कत आ रही है. नेहा बोल थोड़ा सकती है. नेटवर्क इशू था ना, ऐसे बोल रहा हूँ. ये चीजें होंगी, इनको फिक्स रखा करो. नेहा के पास भी है, यस सब सर. बोल सकती है. नेहा के पास भी डेटा है, नेहा ने पॉइंटर अच्छे दिए थे बहुत. ठीक है. सर संदीप. अभी तो जैसे मेरे पास पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे, बट वो लैक ऑफ स्पीकिंग, इसलिए मैं बोल नहीं रही. हाँ बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आई विल रिकमेंड यू गाइस टू लाइक
कभी भी एक्सटेम्पोर दिया है कभी तुमने? एक्सटेम्पोर में सबसे पहले स्टार्ट करो, आज के मीटिंग से, आज के सेशन से कुछ लेके जाओगे ना आप, वो लेके जाना, आज के सेशन से एक चीज लेके जाना कि एक्सटेम्पोर प्रैक्टिस करना है। मैं अपने बारे में बोलो 5 मिनट। हु इज पीयूष? बोल भाई शीशे के सामने खड़ा होके अपने बारे में, रिकॉर्ड कर ले, कैमरा लगा ले। हु इज रविकांत? रिकॉर्ड कर ले। हु इज शिवम सारस्वत? रिकॉर्ड कर लो। हु इज प्रथम भटनागर? ठीक है। हु इज उद्देश्य झा? हु इज संदीप सिंधु? रिकॉर्ड करो, अपने बारे में Sir, am I बोलो। audible? हाँ अभी आ रही है भाई आवाज। तो अपने बारे में बोलोगे Yes, sir. एक्सटेम्पोर, तो अपने आप को My देखो। network is stuck. कोई बात नहीं। फिर जब तुम देखोगे ना बेटा, तो तुमको ये समझ में आएगी, अच्छा यार ये मैं ही था। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा फिर। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है, ये आज यहाँ से जो सीख के जाना है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब अपने आप पे हम मेहनत करेंगे उस चीज को लेके। ठीक है। बिकॉज यही चीज है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बच्चे बेचारे पेपर पास करते हैं मेहनत से, या डायरेक्ट एंट्री में भी जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। उद्देश्य तूने कितने एसएसबी दिए हैं भाई? 2। 2 दिए हैं, क्या रहा एक रिजल्ट? कॉन्फ्रेंस और एक स्क्रीन आउट। एक कॉन्फ्रेंस, एक स्क्रीन आउट। हाँ पीयूष का भी लगभग सेम वही है, रिपीटर है ये भी, तू भी रिपीटर है। ठीक है। तो यू नो कि क्या है, तुझे लग रहा है कि हम जो एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं इससे हमें फायदा होने वाला है? सर बहुत ज्यादा फायदा होगा, अगर अगर किसी भी बच्चे को सही फीडबैक मिले तो सर बहुत ज्यादा फायदा है। यस। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। आई एम गिविंग यू बिल्कुल ब्लंट एंड ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ माइंड कि भाई, ठीक है। अब जिस बच्चे को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको थोड़ा सा डिमीन कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू टू गाइज टू रेज योर बार, बी अप टू दैट लेवल जितना रिक्वायर्ड है ऑफिसर बनने के लिए। यू हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। If you do not have the good communication skills, then you have to increase your bar. You have to work upon that aspect. How you can work upon that aspect? By practicing enough. Every one of you is capable enough to crack it. Not crack it, get recommended. कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें उन पे काम कर लो। बॉडी लैंग्वेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कंटेंट। कंटेंट तो यार गूगल मारोगे सब आता है, गूगल बाबा जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा चैट जीपीटी। अब तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये मेक इन इंडिया की स्क्रिप्ट कहाँ से निकाली भाई ने? चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला, पूरी कुंडली निकाल के दे दी, पीडीएफ में दिया, तुमको भेज दिया। स्मार्टनेस के साथ गेम करना सीखो। मेरे टाइम पे इतने टूल नहीं होते थे, फिर भी हम करके आते थे। अभी भाई बहुत आसान हो गया है। बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ रविकांत, कुछ बोलना है तुझे? सर जैसे बोल बीच बीच में सेशन के टाइम अगर बोलते बोलते मतलब गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाए, या मतलब थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि awkward सा हो, तो उसको हैंडल कैसे करा जाए सर? मतलब तेरे मुंह से निकल जाए तो बाद में सॉरी थोड़ी ना बोलेगा, निकल गई तो निकल गई, पर पहले ही से ही कॉशियस रहो। यू हैव टू बी कॉशियस सर कि तब देखा भी है, मतलब तो बोल रहे हैं उसको, हम क्योंकि सर मैं हाईलाइट हो गया एक तरह से, कि मतलब एक तरह से रिजेक्ट की हाईलाइट हो गया मैं। तो सर मतलब उसको कहते हैं ना कि चांस मतलब पॉजिटिव वे में कैसे लिया के जाए। भाई मैं यही बोलूंगा कि अगर तेरे को वो चीज पॉजिटिव वे में कुछ नहीं है, अब बोल दिया तो बोल दिया, उसको वापस नहीं ले सकते। तर्कस से तीर निकला तो तीर में ही वापस आएगा। तीर निकला वापस नहीं आता, तीर तीर गया। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि अच्छा लॉजिकल बोलना है। एक चीज और याद रखो, फैक्ट एंड फिगर्स एंड डेटा। मैंने जो पीडीएफ दी है उसको पढ़ना। आई हैव गिवन यू द पीडीएफ, पढ़ना। उसमें भाई तगड़े तगड़े पॉइंटर है भाई। ठीक है, बहुत। उसमें बकायदा एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, किसी ने बोला ही नहीं एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन इंडिया में कर रहा है आजकल। टेस्ला वाला पॉइंट बोला था किसी ने, संदीप ने बोला था, है ना? पर संदीप उसको तरीके से बोल ही नहीं पाया। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था इसने, नितिन गडकरी ने बोला था कि सर टेस्ला को, एलन दिमाग मस्क से को। स्किप हो जाते हैं पॉइंट, होते हैं, ये दिक्कत आ रही है। भाई यही तो जब गेम जैसे है। कोई दूसरा बंदा बोल रहा हो, दिमाग में दो तीन पॉइंट इकट्ठे कर लो। जब ये बोलना पहला बोल दिया, दूसरा बोल दिया, तीसरा क्या था करके ऐसे हो जाता है। कुछ बेस लाइंस होती हैं, देयर आर फ्यू बेस लाइंस, आई टेल यू। जब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो वहां पे तुमको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। पैसिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि तुम सामने वाला जो बोल रहा है ना, तुम उसको सुन भी रहे हो और दिमाग में डाटा प्रोसेस भी कर रहे हो कि भाई ये बोल क्या रहा है, क्या मेरे पॉइंट तो नहीं खा गया कहीं, ये जो मैं बोलने वाला हूँ वही तो नहीं चिपका रहा। तो मैं अलग कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? तो मैं अलग अलग क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ? ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। और अगर वो खा भी गया तुम्हारे पॉइंट, तो तुम्हारे पास इतना डेटा होना चाहिए कि तुम कुछ भी बोलोगे ना, सामने वाला शांत होकर सुनेगा। दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन में क्या है, आपको मतलब नहीं है, तुम दिमाग में अपना कहानी कुंडली अपनी चला रहे हो, रील। अपनी रील चल रही है तुम्हारी दिमाग में,
तुमको मतलब नहीं है, तुमको जब मन कर रहा है बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव पार्टिसिपेशन, दैट कैन डू अ लॉट ऑफ हार्म। कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, स्टेज 1 स्क्रीनिंग में तो तुम सारे निकल जाओगे अगर तुम मेरी बात मानोगे। तो स्टेज 2 में जब जीडी होगा ना, पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। वहां तो भाई तुम अकेले बैठे हो, वहां तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। वहां पे कौन बचाएगा तुमको, बोलो। अब मेरे को कपिल, वो लड़के का नाम जो भी है, चलो नाम नहीं लेता, उसने मेरे को बोला भैया मेरे को लग रहा है मेरी साइकोलॉजी गई। अब मैंने पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ, बोला बढ़िया एकदम अच्छा था मेरा इंटरव्यू। मैंने कहा सवाल कैसे पूछे, आंसर क्या किया, बोला भैया हाँ ये नहीं बता पाया था। मैंने कहा बेटा उसी ने फेल किया है तुझे, तुझे लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा हुआ, पर पता नहीं उसने तुम्हारी हो गया तुम्हारे साथ चमत्कार। ठीक है। सो जो तुम्हें लगता है वो सामने वाले को नहीं लगता। हाँ हाँ यस, हाँ भाई। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जैसे काफी चीज पूछना है सर। जैसे अभी रविकांत से सर गलती हो गया था कि उसने अपाचे का नाम ले लिया था। मतलब अपाचे का ये नहीं बोल पाया था कि अपाचे वाली चीजें बन रही है, उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि अपाचे ही बन रहा है। ऐसा बोल दिया था मतलब गलती से। तो अगर जैसे रविकांत ने कहा कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज बन रही है, तो मान ली अगर मेरा बारी ठीक उसके बाद आता तो मैं ये बोलता कि हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, डिफेंस टेक्नोलॉजी बन रही है। हाँ, और साथ में मैं भी एक दो नाम लेता था, जैसे ध्रुव बन रहा है या फिर ब्रह्मोस बन रहा है। तो उसको उसको जैसा सामने वाले को गलत भी नहीं महसूस होता, और फिर हम आगे भी बढ़ पाते, या फिर सामने वाले को करेक्ट करना भी जरूरी है। यस यस, कंडेम मत करो। वाई यू आर कंडेमिंग समवन, दिस इज द लॉजिक। ये तूने जो बात बोली ना कि सर उसी को, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज कॉपरेशन ना, ये तो कॉपरेशन है। वी नेवर लीव अ मैन बिहाइंड यार। और और सर मुझे ये भी पूछना है कि दिस इज द जैसे टीम वर्क। टर्न ले लेता है कि दूसरी तरफ निकल गया, हाँ जैसे एफडीआई एफआई की बात हो रही थी, रविकांत हाँ कर रहा था, हाँ, उसके बाद में एफडीआई एफआई का वापस पॉइंट लाओ डालने वाला था, उससे पहले बच्चे, बहुत बार टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। उद्देश्य ने बोल दिया कि हाँ रिसोर्सेज के बारे हाँ, में। टॉपिक डाइवर्ट होगा ना, वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा सा कट टू कट रखते हैं। उसके बाद चला गया हूँ। मेरी बात अब सुन, दोबारा सर एफडीआई एफआई के पास आए या फिर वापस आना है, नहीं। वापस वापस मेन टॉपिक से भटकना नहीं है। आई एम टेलिंग संदीप, तेरा नेटवर्क डाउन है। आई एम टेलिंग कि वापस आना है सर मेन टॉपिक पे। कोई भी बंदा डाइवर्ट हो जाता है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक। ये काम कर दो ना, तुम कर दो ये काम, हाँ कोई, आई थिंक वी आर सर मेरे डाइवर्टिंग। को भी फीडबैक देते हैं। हाँ, सर मेरे को भी फीडबैक दे देंगे क्या, मेरे से क्या क्या गलती हुई है और मैं क्या काम कर मैंने सकता आई हूँ। थिंक बता दिया तुझे, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है। ये रिकॉर्डिंग आई विल बी पुटिंग अपॉन यूट्यूब, बाकी तू बाद में देखना इसको, बाकी सारे बच्चे भी ले लेंगे तुम्हारे से फायदा। ठीक है, मैंने तुझे यही बोला है कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तेरे पास डेटा है, बट तू थोड़ा सा उसको और स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर भाई, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है। सर मेरी और मतलब अभी मॉक चल रहा था सर, मैं तो मतलब सर पूरा होता है ना, ऐसे छाती हिल रही है, मतलब सब स्टैमर हो रहा था सर बॉडी, फिर भी मॉक है, मॉक में मैं स्टैमर ये हो रहा था वो। बी इजी है ना, बी इजी, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड में रखो। बॉडी लैंग्वेज पे भी एक सेशन करेंगे अपन, एंड आई विल रिकमेंड यू टू वॉच अ टेड टॉक। एमी कडी का एक टेड है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर, बाय एमी कडी। यू सर्च इट ऑन, मैंने अपने बैच के बच्चों को हजारों बार बोला है टू वॉच इट, पता लगेगा आपको काफी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू आई हैव गिवन यू फीडबैक्स की क्या क्या चीजें हैं, मोस्टली सबको मैंने बताया है, उस पर काम करो। कल भी जुड़ेंगे अपन, 7 तारीख है कल, कल भी हम लोग जुड़ने वाले हैं यहाँ पे 5 बजे। और तो कल भी हम लोग वहाँ पे जुड़ने वाले हैं, और कल कल एक टॉपिक जो होगा मैं रात को बना के डिसाइड करके दे दूंगा। इजी टॉपिक रखेंगे कल, कुछ डिफेंस से रिलेटेड ही रखेंगे, ताकि तुम लोगों को और ज़्यादा बोलने का, बहुत इजी टॉपिक रखूंगा, तुम लोग आसानी से बोल लो। ठीक है, सो यही है। सर एक बात और था। हाँ, थोड़ा सा समय की, सर आप अभी तो, सर बस एक ही सवाल है वैसे इस पर। बोल सर बोल। अभी तो हम लोग आराम से एक एक को बोलने दे देते हैं, मतलब एक एक बंदा अच्छे से बोलने को मौका यहाँ पे मिलता तो है। लेकिन सर जब रिपीटर होंगे तो सर वो तो हालत ही खराब हो जाती है सर। मतलब जैसे अभी 4 लोग एक साथ बोलने लगे, समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, एकदम सारे लोग एक साथ बोलते हैं, और मान ले सब 3 3 4 4 अटेम्प्ट वाले एक साथ होते हैं, तो फिर तो सर खत्म ही है सर। भाई इस वाले ग्रुप को एक्टिव कर रहा हूँ, तुमको भी बोलूंगा रिपीटरों को लाओ यहाँ पे, फिर आगी असली मजा, फिर भसड़ चालू होगी। ठीक है, फिर भसड़ चालू होगी ना, देन यू विल गेट टू नो कि कौन कितने पानी में है, तब आएगा मजा। अभी तो मैंने खुद नहीं बसर चालू करी, मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ कि तुमको बोलने नहीं दूंगा मैंने वो कभी रूप दिखाया नहीं है। अभी आई एम इनकरेजिंग यू, मैं बोलना चालू किया तो तुम बंद हो जाओगे सारे। ठीक है,
बट आई विल रिकमेंड यू कि अपने दोस्तों को ऐड करो जिन बच्चों ने एसएसबी दे रखा है, जिनका एसएसबी आने वाला है। यू ऐड, मैंने ओपन कर रखी है सेटिंग ग्रुप की, तुम लोग ऐड कर सकते हो एसएसबी वाले ग्रुप पे खुद ही। एंड देन जब तुम देखोगे यहाँ 20-25 बच्चे हैं और तब भसड़ मच रही है, तब अलग कहानी होगी। ठीक है, वो आएगा, दैट डे विल ऑल्सो कम। इस महीने में ही होगा वो कार्यक्रम भी, टेंशन मत ले। धीरे धीरे द स्ट्रेंथ विल राइज, यू गाइज बी रेगुलर इन दिस एंड वी विल कीप ऑन एडिंग पीपल। एक और मैं पुश मार दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा, एंड देन वो चीज़ भी होगी, तुम एकदम नेक्स्ट लेवल बन के जाओगे यार, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई होप यू लर्नड अ लॉट। दिस वाज द क्लास 3 एंड अपलोड करते हैं इसको, लिंक देता हूँ मैं तुमको, और इसको वापस से रिविजिट कर लेना एक बार स्पीड बढ़ा के। कुछ इनपुट्स जो दिए हैं मैंने बच्चों को सबको, उन पे काम करना है भाई। ठीक है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, एंड आई विल ऑल्सो ऐड सम रिकमेंडेड कैंडिडेट एज वेल, वेरी टाइम, एनी टाइम सून। ठीक है।